I hope you are now comfortable with flowcharts and have understood the different components that we studied in last video, and you have also tried at least one problem by yourself and have written flowchart for it. So let's now move further. Let's now move further with flowcharts. Many times actually we come across a situation where we have to decide upon thing based on some condition. For example, we say, so if this will happen, then I'll do some xyz step, or I'll do, otherwise I'll do some other stuff. If I have to take a very simple example for that, then let's say, so if it is raining outside, then I'll carry an umbrella with me, otherwise I'll not. So whether I have to carry an umbrella with me or not actually depends on a condition, on a situation, and that situation is that whether it is raining outside or not. So we are deciding upon the situations. I have two different set of actions to do. If condition is true, I'll do step X. If condition is not true, if it is false, I'll do another step Y. So flowcharts में भी we will have to actually represent and face such situations while solving a problem. ऐसा बहुत बार हम फेस कर रहे होंगे. सो फ्लोचार्ट में ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए नाउ आई हैव अनदर कंपोनेंट ऑफ फ्लोचार्ट दैट इज कॉल्ड डिसीजन बॉक्स. सो decision box actually looks like this. So diamond shaped box, we write condition here. So here we'll write condition. This condition can either be true or false. So if this condition is true, yes, or true obviously, I'll go and follow these steps in this direction. Else I'll follow some other steps. So this is a situation. Now let's understand it better and take an example. So we'll be able to grasp this better with the help of an example. So let's solve a very simple problem, and the problem is that given a number, you need to check whether that number is odd or even. So बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, एंड इसके लिए हम फ्लो चार्ट बनाने का ट्राई करते हैं. अगैन वी विल फॉलो ऑल दो स्टेप्स. वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. वी शुड थिंक कि हम कैसे फिगर आउट कर रहे होंगे कोई नंबर इवन है या ऑड है. सो लेट्स से मैंने तुम्हें एक नंबर दिया एंड नंबर 9, एंड यू विल टेल मी कि ये नंबर इवन है या ऑड है. सो हाउ विल यू एक्चुअली डिसाइड कि ये इवन है या ऑड है. सो 2 के मल्टीपल्स आर ऑल इवन, एंड 1, 3, 5, 7 they are all odd. So I think हम क्या कर रहे होंगे, we'll figure out whether that number is multiple of 2 or not. अगर वो 2 का मल्टीपल है तो वो इवन है, अगर वो 2 का मल्टीपल नहीं है तो वो ऑड है. मल्टीपल फिगर आउट करने के लिए whether some number x is multiple of 2 or not, I think हम x को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. So we'll follow some steps. Finally if the remainder is 0, then I can say कि x divide हो गया है completely 2 से and it is multiple of 2. Otherwise I'll say that it is not multiple of 2. यही करना होगा. So मुझे रिमाइंडर चेक करना होगा डिवीजन के बाद कि रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फिर वो 2 का मल्टीपल है, मतलब इवन नंबर है. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 1 आता है, तो फिर वो ऑड नंबर है. So हम डिवाइड करने के लिए we write like this, x by 2, right? So अगर मैं let's say 10 by 2 लिख रही हूँ, तो 10 divided by 2 आंसर should be what? So आंसर should be 5. So जब मैं 10 divided by 2 लिख रही हूँ, आंसर should be 5, which means what I am getting is the quotient. So जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5s are 10, and what I am getting the result here is the quotient. So जैसे डिवाइड है वैसे ही there is something called mod operator, modulus operator. So 10 modulus 2 will give me the remainder. 10 by 2 करके मुझे क्वेश्चन मिल रहा था, 10 modulus 2 करूँगी तो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा. So 10 mod 2 का रिमाइंडर is 0. So answer will be 0 in case of 10 mod 2. Okay, so 10 तो हो गया. 11 करते हैं. 11 by 2 क्वेश्चन will be 5. 11 mod 2, so modulus will give me the remainder, so remainder will be 1. So हम रिमाइंडर के हेल्प से फिगर आउट कर सकते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है. अगर रिमाइंडर 0 है तो नंबर इवन है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो नंबर ऑड है.
तो ये हमने अपने दिमाग में सोच लिया है कि हम कैसे बताने वाले हैं कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है। ठीक, सो नाउ दैट वी हैव थॉट ऑफ इट, लेट्स मूव टूवर्ड्स द फ्लो चार्ट। सो सबसे पहले तो स्टार्ट टू इंडिकेट कि मेरा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? कोई भी नंबर इवन है या ऑड बताने के लिए नंबर तो रीड करना पड़ेगा। सो व्हाट यू शुड टेक इज द नंबर। व्हाट इज द नंबर? सो रीड ए, नंबर लिया हमने, उसको ए एक स्टोरेज है उसमें स्टोर कर दिया। सो ये जो फ्लो चार्ट्स में हम ए ले रहे थे, पहले PRT ले रहे थे, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम के उसमें एग्जाम्पल में। सो दीज A, PRT, whatever I have taken these storages, we actually call them variables. And the logic of variables is exactly the same जो हम maths में पढ़ते थे. We studied variables and constants, right? So these are variables. That means we can put any value into them at different stage of program. So ये variables है, जो भी storages हमने लिए हैं इनको variables बोलते हैं. Okay. So read A. नंबर रीड करने के बाद अब हमें चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है. चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसे मॉडुलस लेना चाहिए. सो नंबर मॉड 2 निकालना चाहिए. नंबर मॉड 2 निकालने के बाद ये मेरी कंडीशन है, ये कंडीशन या तो 0 होगी या तो 1 होगी. तो अगर नंबर मॉड 2 0 है तो इसका मतलब वो इवन है. अगर नंबर मॉड 2 0 नहीं है तो इसका मतलब वो ऑड है. सो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड कैलकुलेट A mod 2. A mod 2 एक कंडीशन है जिसके बेसिस पे मैं अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करने वाली हूँ, इवन बताना है या ऑड बताना है. इसीलिए इसे हम एक डिसीजन बॉक्स में लेंगे बिकॉज दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर. इस कंडीशन के बेसिस पे हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं. तो A mod 2 equal to 0 is the deciding factor. If the answer is yes, then I can print even. I can say कि नंबर even है. And that's it. We are done. We have figured it out that number is even. Otherwise, अगर आंसर नो होता है, नंबर मॉड 2 0 नहीं है, 1 है, तो फिर नंबर ऑड है. So we should print that the number is odd and we should end. So let's quickly test it once. Test it for say 25. So read A. A is now 25. We'll calculate 25 mod 2. So 25 mod 2 will be 1. So A mod 2, 25 mod 2 0 नहीं है, तो we'll move to the no 2 and we'll print odd and end. That's it. 24 के लिए टेस्ट करते हैं. So नंबर रीड करा, 24 mod 2 निकाला, 24 mod 2 0 आएगा. So we'll go towards yes path and we'll print that number is even and we'll end. So we are done. This is a basic program जिससे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है. इसके लिए हमने डिसीजन बॉक्स लर्न करा. डिसीजन बॉक्स इज यूज्ड वेयर यू हैव टू डिसाइड ऑन स्टफ. Okay, so I hope you have understood it. Now let's take another example. Let's take it step further and move on to our next problem. So the next problem that we have to solve is you are given 3 numbers and हमें उन 3 numbers में से largest निकालना है. So if I tell you कि 3 numbers है और उनका largest निकालना है, what you will do in your mind, you will read 3 numbers. Let's say 3 numbers are 10, 2 and 15. So ये 3 numbers हमने रीड करे, हमने स्टोर कर लिया दिमाग में कि फर्स्ट नंबर 10 है, सेकेंड नंबर 2 है और थर्ड नंबर 15 है. What we'll do is we'll compare them. 10 अगर 2 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है तो 10 लार्जेस्ट है. सिमिलरली 2 अगर 10 और 15 दोनों से बड़ा है तो फिर 2 लार्जेस्ट है, और अगर 15 बाकी दोनों नंबर्स से बड़ा है तो फिर 15 लार्जेस्ट है. तो एक नंबर लार्जेस्ट है फिगर आउट करने के लिए हमें चेक करना होगा कि वो नंबर बाकी दोनों नंबर से बड़ा होना चाहिए. दिस इज आवर थॉट. इस थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी दी फ्लो चार्ट. सबसे पहली चीज दी स्टार्ट ब्लॉक. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू रीड द नंबर्स. सो रीड A, B, C. We'll read all 3 numbers. Okay. So after reading the numbers, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें लार्जेस्ट फिगर आउट करना है. और लार्जेस्ट फिगर आउट करने के लिए अभी हमने डिसाइड करा व्हाट वी शुड डू इज कंपेयर वन नंबर विद अदर 2. If first number is greater than second and third number, then first number is the largest. If second number
is greater than first and third number, then second is largest. So what we should do is we should check if A is greater than B. A was the first number, तो अगर A B से बड़ा है and A C से भी बड़ा है, so A should be greater than both of them, B से भी और C से भी. अगर दोनों से बड़ा है, ऐसा है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि A लार्जेस्ट है. वील प्रिंट A, लार्जेस्ट मिल गया है, सो वी आर डन. और कोई स्टेप्स नहीं है, सो लार्जेस्ट फिगर आउट कर लिया एंड वी आर डन. हमें डिसाइड करना था, तो अगेन हमने उसके लिए डिसीजन बॉक्स का यूज़ करा है. ए बी से बड़ा है या नहीं, ए सी से बड़ा है या नहीं. सो ये डिसीजन लेने के लिए हमने डिसीजन बॉक्स यूज़ करा है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए इज़ दिस एंड. वी हैव यूज दिस एंड. सी, ए को लार्जेस्ट में तभी बोल सकती हूँ जब वो बी से भी बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो. सो इस पॉइंट पे एक्चुअली दिस इज़ वन कंडीशन एंड दिस इज सेकेंड कंडीशन. आई कैन अल्टीमेटली से कि ए लार्जेस्ट है ओनली व्हेन ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो, बी वाले से भी बड़ा हो और सी वाले से भी बड़ा हो. अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही मैं फाइनली येस बोल सकती हूँ, फाइनली येस वाले पाथ को फॉलो कर सकते हैं. तो इसीलिए हमने एंड लगाया है. सो एंड का आंसर ओवरऑल, इस एक्सप्रेशन का आंसर विल बी येस ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन बोथ आर ट्रू. पहली वाली ए ग्रेटर देन बी भी ट्रू होना चाहिए, येस होना चाहिए. ए ग्रेटर देन सी भी येस होना चाहिए, तो ही पूरा आंसर येस होगा. अगर ए ग्रेटर देन बी तो है पर सेकेंड वाला ट्रू नहीं है, ए ग्रेटर देन सी नहीं है, तो फिर इसका आंसर नो होगा. सो येस तभी होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं. तो अगर येस है तो हमने ए प्रिंट कर दिया और नीचे आ गए, एंड कर दिया. अगर आंसर नो है, ए लार्जेस्ट नहीं है, तो फिर लार्जेस्ट या तो बी होगा या तो सी होगा, उन दोनों नंबर्स में से कोई होगा. तो हमें चेक करना चाहिए कि बी एंड सी में से कौन सा लार्जेस्ट है. सो सेम ही काम बी के लिए भी और सी के लिए भी. नाउ आई विल चेक इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी. If both of these are true, if both of these are yes, then I can say कि B largest है and end. So B is the largest number and we should end. ठीक है. अगर yes नहीं है तो no option है, नहीं है B largest, तो नीचे आएंगे. A भी largest नहीं है, B भी largest नहीं है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कि C largest है. So we'll print C and end. ठीक है. सो दिस वाज द बेसिक फ्लो चार्ट. जो हमने अपने थॉट्स सोचे हमने उसे लिख दिया है. फ्लो चार्ट बनाने के बाद हमेशा व्हाट वी शुड डू इज वी शुड टेस्ट इट फॉर 1 or 2 इनपुट्स. ठीक है. सो लेट्स डू दिस. लेट्स टेस्ट इट. लेट मी क्लियर दिस अप एंड लेट्स टेस्ट इट फॉर नंबर्स. लेट्स go with our example of 10, 2 and 15. ठीक है. सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. सो ए बी सी 3 नंबर्स ले लिए हमने. ए बी सी रीड कर चुके हैं. नीचे आए, ए ग्रेटर देन बी चेक करा. सो ए ग्रेटर देन बी है, हाँ. फिर नेक्स्ट चीज़ हमने चेक करी ए ग्रेटर देन सी. सो क्या 10 ग्रेटर देन 15 है? नहीं. सो एक येस है बट एक नो है, तो हम नो की तरफ जाएंगे. व्हील से ए लार्जेस्ट नहीं है. नीचे आए, हमने बी के लिए चेक करा, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी. दोनों के दोनों नो है, ना ही 2 10 से बड़ा है ना ही 2 15 से बड़ा है. सो फिर से नो की तरफ आए एंड हमने सी प्रिंट कर दिया विच इज़ 15. सो वी प्रिंटेड कि 15 इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल, विच इज़ करेक्ट. 15 है लार्जेस्ट तीनों में से. सो इट सीम्स इस टेस्ट केस के लिए, इस इनपुट के लिए तो हमारा जो भी हमने फ्लो चार्ट लिखा है वो सही वर्क कर रहा है. ठीक है. एक करके खुश नहीं होते हैं. लेट्स ट्राई इट फॉर अनदर ऑल्टरनेटिव, अनदर इनपुट. दिस टाइम लेट्स ट्राई इट फॉर 10, 10 एंड 5. 10, 10, 5 ये नंबर्स है मेरे. इसके लिए टेस्ट करते हैं. सो ए बी सी रीड कर चुके हैं. अब यहाँ पर आते हैं, कंडीशन चेक करते हैं. ए ग्रेटर देन बी. ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10. क्या 10 10 से बड़ा है? नहीं. सो 10 10 से बड़ा नहीं है. ऑल्दो ए इज ग्रेटर देन सी, सो 10 इज ग्रेटर देन 5, बट ए ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन का आंसर नो है, इसीलिए एंड का आंसर नो होगा और हम नीचे आ जाएंगे.
सो नीचे वाली कंडीशन चेक करेंगे, क्या B A से बड़ा है? 10 और 10 फिर से दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इस केस में भी आंसर नो होगा, सो B A से बड़ा नहीं है। सो B C चेक करा तो B C से तो बड़ा है, हाँ, बट दो कंडीशंस में से एक नो हो गई है, तो ओवरऑल आंसर नो होगा और हम नीचे आएंगे एंड हम C प्रिंट कर देंगे एंड C वाज 5। इस केस में हमारे फ्लो चार्ट के बाद आंसर आ रहा है कि 5 इज द लार्जेस्ट नंबर, विच इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। सो दिस मीन्स हमारे फ्लो चार्ट में कोई बग है एंड वी शुड रेक्टिफाइड इट। See, this is what is the benefit. But after writing flowchart, what you should do is you should test it so that अगर कोई mistake है and we are able to figure out at this stage, it is way easier कि हम बाद में कोड में कन्वर्ट करें और फिर हमें मिस्टेक मिले। सो अगर हमें अभी मिस्टेक हम रियलाइज कर पा रहे हैं, सो इट्स ऑब्वियसली बेटर। ओके, सो B ग्रेटर देन A, B ग्रेटर देन C A के बाद हमने C प्रिंट कर दिया था एंड वी केम हियर एंड वी सेड कि 5 लार्जेस्ट है, तो दैट मीन्स कि this is incorrect. Now what we should actually do to correct it? Ideally we should have said कि A largest है because A और B equal है, तो that's okay. So what we should have done is हमने सिर्फ greater check करा, even if they are equal I am okay saying कि A largest है। So what we should do is we should just change this situations conditions to greater than equal to. So if A is greater than equal to B or A is greater than equal to C, then I can say A is largest. So हमें बस यहाँ पे greater than की जगह greater than equal to लगा देना चाहिए and we will be able to achieve it. अब अगर हम टेस्ट करेंगे तो A greater than equal to B okay है क्योंकि दोनों equal हैं, so answer is yes. A greater than C का आंसर yes था ही, overall आंसर yes होगा and हम A print करेंगे and we'll finish. So this में हम सही आंसर print कर रहे होंगे। I hope you have understood it. So again now it's time for you to try your hands at some flowcharts and we'll then move further.